to talk about the material safety data sheet. This one, see, and the safety. Okay, so as we have discussed in our earlier practical, I have told you that we are going to discuss few of the safety rules. Okay, we are going to discuss few of the previous lessons. Okay, what all accidents so far has occurred, because of which we are taking this safety measures, or we are following this safety measures. Okay. Yes. Audible, no? Yes, ma'am. Huh. Now see, this is safety when you are performing the practicals in lab. Now this safety first. Okay. What all different things are there which we need to know? क्या फर्स्ट एड होना चाहिए अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो? ओके, अभी इसमें क्या हुआ? द वेरी फर्स्ट वे, ओके, व्हाई दिस इज एन मेजर एस्पेक्ट लैब सेफ्टी, ओके, या फिर केमिकल सेफ्टी, ये एक मेजर एस्पेक्ट क्यों बना? क्यों? क्योंकि क्या हुआ, पहले इंसिडेंसेस जो हुए जस्ट बिकॉज ऑफ द केयरलेस बिहेवियर, मतलब केयरलेस बिहेवियर होने के वजह से ना कि सिर्फ किसी स्टूडेंट को या फिर रिसर्चर को इंजरी हुआ, बट along with that sometimes death has also occurred. So because of which we are taking utmost care that the safety should be followed so that the accidents will not occur because of, at least because of carelessness. Okay, so see this these are the recorded incidents. Okay, now this is in 2009, in 2009 one research assistant was there in the University of California, Los Angeles, in chemistry and biochemistry department mein. What has happened, that researcher or that research assistant was wearing the safety glasses and a sweater made up of synthetic material and nitrile gloves. No lab coat was there. Okay, then that ignition took place and uska sweater and gloves dono bhi jal gaye, because of which that researcher or that research assistant, whoever was there, caught fire and faced some this accident. Okay, what you can say, the first aid to be taken in case of fire. So if such fire cases occurs, okay, fire accident occurs, then you should also know the safety, okay, first aids which is followed. Then next accident was, it was an, like see, this was an explosion. Okay, kya hua tha, one extract was there, that extract, okay, reaction का जो extract था वो रोटरी इवेपोरेटर यूज करते वक्त, ओके, व्हाट हैज हैपेंड, वो जो रोटरी इवेपोरेटर ब्रेक हो गया, उसके वजह से वो चेस्ट में, आर्म्स में, फेस में केमिस्ट के वो पीसेस गए एंड दैट पर्सन गॉट इंजर्ड. ओके, ऐसे ही कुछ और एक्सीडेंट्स हुए, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एक्सप्लोजन हुआ. ओके, किसी यूनिवर्सिटी में कोई स्टूडेंट एक्सप्लोजन की वजह से, क्यों उसको प्रॉब्लम हुआ, बिकॉज that student wasn't wearing or that personnel wasn't wearing any personal protective equipment, मतलब PPE. जैसे कि अभी कोविड में सेफ्टी के लिए PPE किट पहनते हैं, है कि नहीं? यस, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए या फिर सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए PPE का मटेरियल, मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज ना करने की वजह से दिस एक्सीडेंट हैपेंड. ओके, और जो टोलेंस रिएजेंट, अभी टोलेंस रिएजेंट तो सबको पता है. यस, in your first year 12th standard you have heard about the tolerance reagent. Yes,
अल्डिहाइड के डिटेक्शन के लिए टेस्ट होता है, राइट और नॉट, सिल्वर मिरर टेस्ट। तो ये टॉलरेंस रिएजेंट भी इट इज नॉट दैट इजी टू हैंडल। जब ये डिस्पोज किया तो वाइल डिस्पोजिंग दैट अनयूज्ड टॉलरेंट रिएजेंट caused an unexpected explosion। तो ऐसे कुछ इंसिडेंसेस हुए। ओके, देन यहाँ पे क्या हुआ, ये केस में तुम लोग देख सकते हो कि एक रिसर्चर था, वो रोटरी इवेपोरेटर यूज कर रहा था ऑर्गेनिक ये अपना टू रिमूव ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फ्रॉम अजोबेंजीन प्रेसिपिटेट। तो वो टाइम पे एक एक्सप्लोजन हुआ बिकॉज ऑफ द पेरोक्साइड कंटामिनेंट्स एंड दैट पर्सन गॉट इंजर्ड। फिर नेक्स्ट और एक एग्जांपल है, देखो यहाँ पे तुम लोग हाथ का साइन देख सकते हो, हाथ है। ओके, हाथ पे कुछ ऐसे पैचेस है, दिखा? यस, यस मैम। सो ये ऐसे पैचेस बिकॉज ऑफ कोरोसिव मटेरियल्स भी आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एकदम कॉमन ले लो, फेनॉल वगैरह जब यूज करते हैं और अगर तुम लोग ग्लव्स नहीं पहनते हो एंड इफ कम्स इन योर कांटेक्ट विथ योर स्किन, then also such kind of spots you can observe on your skin. Okay, then now this laboratory safety, इसमें क्या होता है, अभी समझो अगर एग्जिट लेना है कुछ, अगर ऑल ऑफ अ सडन इमरजेंसी केस है तो, या फिर आईज में कुछ इंजरी होता है तो इमरजेंसी शॉवर लेना है या फिर वॉश लेना है। ओके, आई वॉश लेना है। देन फायर एक्सटिंग्विशर, जैसे कि मैंने बोला इंट्रोडक्शन में, बहुत सारे टाइप्स के फायर एक्सटिंग्विशर्स भी होते हैं। फर्स्ट एड किट इज मस्ट इन द लैब। ओके, तो ये फायर एक्सटिंग्विशर्स के अलग अलग कोड्स भी है। ओके, येलो, वायलेट, ब्लैक, रेड। ओके, तो ये एक्सटिंग्विशिंग मीडियम्स, इसमें अगर येलो है तो वेट केमिकल होता है, वायलेट है तो ड्राई पाउडर होता है, ब्लैक है तो CO2 होता है। ओके, सो दिस वे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर्स। फिर बर्न है तो इमीडिएटली कोल्ड वाटर डालना है। ओके, कट्स या फिर ब्रूसेस है तो पहले तो ब्लीडिंग को स्टॉप करना है, टच नहीं करना है ओपन वुंड्स को। ओके, फिर आईज में फ्लश लेना है। ओके, वाटर फ्लश, फ्लशिंग द आईज। देन ग्लव्स, बहुत सारे टाइप के ग्लव्स भी होते हैं, तो दैट ग्लव्स यू आर सपोज टू यूज। ओके, ब्यूटाइल ग्लव्स है, नियोप्रीन ग्लव्स है, देन नाइट्राइल ग्लव्स है। So all these are different types of gloves which are available. Okay, then next if you will see this is see the safe practices। हमेशा प्रैक्टिकल होने के बाद सोप से हैंड वॉश करना है। ओके, सोप से हैंड वॉश लेना है। नो फूड और ड्रिंक इज अलाउड इन द लेबोरेटरी, कुछ भी खाने की चीज लैब में अलाउड नहीं है। ओके, फिर ये बहुत सारे तरीकों के सिंबल्स है, तो ये हर एक चीज के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, जैसे कि फ्लेम के लिए ये वाला सिंबल, हजार्डस मटेरियल के लिए ये वाला सिंबल्स, ऐसे बहुत सारे तरीके के सिंबल्स होते हैं केमिकल्स के लिए भी। ओके, अभी और भी बहुत सी चीजें हैं दैट वी विल सी अहेड। हाँ, ये जो अभी हम लोगों ने देखा शेल्फ अरेंजमेंट, रैक अरेंजमेंट। ओके, ये सारी चीजें हैं। फिर कुछ इम्पोर्टेंट सेफ्टी रूल्स हम लोग देखेंगे, जैसे कि लैब सेफ्टी में क्या क्या आता है। देखो अभी यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, ये स्लाइड पे I will zoom this slide. See, हाँ, ये नो द लोकेशन ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट, मतलब फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह कहाँ है, फर्स्ट एड किट कहाँ है, ये सब तुम लोगों को पता होना चाहिए। फिर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने चाहिए, सेफ्टी गॉगल्स पहनना चाहिए, लैब कोट्स पहनने चाहिए। ओके, कुछ मैड साइंटिस्ट नहीं प्ले करना है, मतलब इसमें वो डाला उसमें वो डाला और बूम, ऐसे कुछ नहीं करना है लैब में। ओके,
whatever the procedures are being given, you are supposed to follow that procedures. And even if you want to play mad scientist, then you are supposed to first take the permission that if I'll do this or if I'll do that, then what will happen, then only proceed for that. Okay, कुछ खाना नहीं है लैब में, पानी नहीं पीना है, ओके, टेस्ट नहीं करना है कोई भी केमिकल, वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज करना है, खुद पे कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है कि मैं इसका कलर देखता हूँ, टेस्ट देखता हूँ, ओके, स्मेल देखता हूँ, ऐसे कोई भी एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने हैं, समझा? Yes, ma'am. So these are different safeties. Okay, फिर और एक I will show it to you. This is also one of the good leaflet which I have got from the net. Okay, lab safety, general precautions क्या क्या है, okay, protective clothing क्या क्या है, first aid में क्या क्या है, okay. Now the general precautions के teachers के instructions को follow करना है, कोई भी ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट टीचर के अप्रूवल के सिवा नहीं कैरी आउट करना है, क्लीन अनक्लटर्ड लैब होना चाहिए, ईटिंग और ड्रिंकिंग लैब में अलाउड नहीं है, सेफ्टी गॉगल्स हमेशा होना चाहिए, ओके, डिस्पोजेबल ग्लव्स पहनने चाहिए, अभी है हमेशा रबर ग्लव्स होते हैं डिस्पोजेबल, केमिस्ट्री लैब में क्लॉथ के ग्लव्स नहीं रहते, क्यों? क्योंकि केमिकल का स्पिलेज वगैरह होता है, ओके, तो उसकी वजह से ये खराब हो जाते हैं, तो इसीलिए डिस्पोजेबल ग्लव्स आर प्रेफर्ड, ओके, एप्रन पहनना चाहिए, ज्वेलरी, गर्ल्स के रिंग्स, ओके, इयररिंग्स, nail polish, whatever you people apply, that all should not be done when you are doing chemistry practicals, okay. long sleeves को tie back कर, ये remove jewelry and tie back long sleeves, okay, कहीं कुछ लटक रहा है ऐसे नहीं चाहिए, प्रॉपरली हेयर्स को टाई करना है, लॉन्ग हेयर्स को, ओके, नहीं तो कैप पहना है, कैप के बाहर ये बाल है, कैप के बाहर वो बाल है, ऐसे अलाउड नहीं है, ओके। देन फर्स्ट एड किट का लोकेशन पता होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं वो पता होना चाहिए, ओके। फिर कंबस्टिबल मटेरियल से दूर रहना चाहिए, हीटेड कंटेनर को खुद उठाना नहीं है, पेयर ऑफ टोंग या फिर किसी क्लॉथ का इस्तेमाल करना है, ओके। देन व्हेन हीटिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन यू आर हीटिंग द टेस्ट ट्यूब, मेक श्योर दैट योर माउथ फेसेस अवे फ्रॉम एवरीवन, मतलब क्या, नहीं तो फिर टेस्ट ट्यूब ऐसे पकड़ा है, हीट कर रहे हो और सीधा कुछ बम्प हुआ तो मुंह के ऊपर, ऐसे नहीं होना चाहिए, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. हाँ, so this is nothing but the dress code which you should follow, okay. ये सब जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, अप्रन, शूज, ओके, पूरे क्लोज टोड शूज होने चाहिए, ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए, ओके, लॉन्ग हेयर्स नहीं होने चाहिए, डैंगलिंग स्लीव्स नहीं होने चाहिए, ग्लव्स पहनने चाहिए, ओके, ऑल दीज थिंग्स, सी दिस आर द ग्लव्स, ओके, sorry, these are the gloves, this is the goggle, lab coat, shoes, okay. Samjha general safety, how the attire should be? Yes? Yes, ma'am. Yes. Okay. Now the material safety data sheet which is there, that I will show it to you. What is material safety data sheet? ठीक है, I will share the screen with you for material safety data sheet. MSDS जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं? Yes? Hello? Can you see the MSDS material safety data sheet which I have projected? Yes? Yes. Yes. So material safety data sheet, नाम से क्या समझ में आता है तुम लोगों को, क्या हो सकता है ये?
नाम से क्या समझ में आता है तुम लोगों को? What do you understand by the name MSDS, that is Material Safety Data Sheet? What do you understand by this? मटेरियल की सेफ्टी। Yes, Material Safety. मतलब ये एक ऐसा डाटा शीट है जिसमें मटेरियल सेफ्टी इंक्लूडेड है। तो इफ यू विल सी दिस मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट इज ऑफ सिग्मा एलरिच, ओके, और प्रोडक्ट का नाम है ब्रोमीन, ओके। अब ये इसके कुछ डिटेल्स है, सिग्मा एलरिच के कॉन्टैक्ट्स है, सप्लायर कौन है, सप्लायर की डिटेल्स है, प्रोडक्ट का नाम है, ओके। फिर हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, ओके। तो ये सारे हजार्ड आइडेंटिफिकेशन है, ये पिक्टोग्राम्स है, ओके। जो पिक्टोग्राम्स मैंने बोला, बायो सेफ्टी हजार्ड वगैरह, सो जो पीपीटी में थे, all that pictograms are also there. Now the hazard statement and precautionary statement क्या है? ब्रोमीन के लिए, हाँ, मे बी हार्मफुल इफ इट इज स्वैलोड, मतलब क्या, ब्रोमीन को स्वैलो किया तो ये हार्मफुल हो सकता है। क्या कर सकता है? स्किन बर्न कर सकता है, आई डैमेज कर सकता है, इनहेल किया तो ये फीटल भी हो सकता है, ओके। एक्वेटिक लाइफ के लिए तो ये बहुत टॉक्सिक है। सो दिस इज द हजार्ड स्टेटमेंट। सो व्हाट आर प्रिकॉशंस यू कैन टेक नाउ? इनहेल किया तो फीटल है, तो हम लोगों को ये ब्रीथ नहीं करना चाहिए, यस और नो। फिर यस। एनवायरमेंट में उसको रिलीज नहीं करना चाहिए, प्रोटेक्टिव ग्लव्स पहनने चाहिए, क्यों? क्योंकि स्किन बर्न कर सकता है। आई प्रोटेक्शन लेना चाहिए, यू कैन यूज सेफ्टी गॉगल्स, क्यों? क्योंकि आई डैमेज कर सकता है। फेस प्रोटेक्शन करना चाहिए, ओके। रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन यूज करना चाहिए। सो ये सारे प्रिकॉशनरी स्टेटमेंट्स है, मतलब क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, ओके। एंड हजार्ड स्टेटमेंट मतलब क्या क्या हजार्ड हो सकता है, ओके। नेक्स्ट इफ यू विल गो, you can see this potential health effect, again it is same, okay, eye burn, skin damage, fetal if it is inhaled। तो फर्स्ट एड मेजर्स क्या क्या है? फर्स्ट एड मेजर्स में ये अपना ब्रीदिंग नहीं करना है, ओके। देन क्लोथिंग प्रॉपर पहनना है, शूज पहनना है, कंटामिनेटेड है तो उसको रिमूव करना है, आई कांटेक्ट प्रिवेंट करना है, और अगर होता है तो एटलीस्ट 15 मिनट्स तक प्लेंटी ऑफ वाटर से वॉशिंग देना है, रिंसिंग करना है आईज का, ओके, टिल द पर्सन इज ट्रांसपोर्टेड टू द हॉस्पिटल। और अगर स्वैलो होता है तो वोमिटिंग इंड्यूस नहीं करना है, सिर्फ माउथ को वाटर से रिंसिंग करना है, अंडरस्टूड? यस। यस। अभी ये नॉन फ्लेमेबल है, कंबस्टिबल है, ओके, नॉन फ्लेमेबल है, फ्लेमेबल मटेरियल नहीं है। नेक्स्ट इफ यू सी, हाँ, पर्सनल प्रिकॉशन, अगेन एनवायरमेंटल प्रिकॉशन, ये सब दिया है। मतलब in short, what are the safety which is to be followed from the potential hazards that you come to know, okay। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि हैंड प्रोटेक्शन के लिए ग्लव्स यूज करना है, ओके, आई प्रोटेक्शन के लिए गॉगल्स यूज करना है, स्किन प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज करने हैं, ओके। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी है उसके, देखो कौन सा फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है, ओके। मेल्टिंग रेंज क्या है, ये दिया है, बॉइलिंग पॉइंट दिया है, फ्लैश पॉइंट का डाटा अवेलेबल नहीं है, बट ये सारी चीजें सेफ्टी डाटा में आती है, ओके। देन हाँ, मटेरियल्स टू बी अवॉइडेड, अगेन सी व्हाट ऑल मटेरियल्स टू बी अवॉइडेड व्हेन यू आर हैंडलिंग ब्रोमीन। अल्कली नहीं होना चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होना चाहिए, स्टेनलेस स्टील का मटेरियल नहीं होना चाहिए, अल्डिहाइड कीटोन्स नहीं होने चाहिए, प्लास्टिक रबर नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये सारी चीजें अवॉइड करनी है व्हेन यू आर हैंडलिंग ब्रोमीन, ओके। Understood about the material safety data sheet, what it contains?
What it contains? Material safety data sheet क्या contain करता है? Yes. Yes. Write down MSDS, which is a abbreviated form of material safety data sheet. Okay. इसमें क्या क्या होता है? इसमें मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट में क्या क्या देखा अभी हम लोगों ने? इसमें हैंडलिंग प्रिकॉशंस होते हैं. ओके, हैंडलिंग प्रिकॉशंस. और क्या था? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं. ओके, फिर फर्स्ट एड मेजर्स होते हैं. देन हजार्ड्स होते हैं. ओके, हजार्ड्स क्या क्या होते हैं इसकी वजह से ये इंफॉर्मेशन. सी फर्स्ट एड मेजर. ओके, then accidental measures, handling and storage. Then you have physical and chemical properties, you have stability and reactivity data, toxicological information. ये सारी इंफॉर्मेशन किस में होती है? यस, हजार्ड स्टेटमेंट, प्रिकॉशनरी स्टेटमेंट, ये सारा MSDS में होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट है SOP. SOP, that is स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. SOP किसी को पता है SOP क्या होता है? यस, SOP पता है किसी को क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है? यस, हेलो, SOP पता है किसी को? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. यस, वेरी करेक्ट. स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मतलब क्या होता है इसमें? एज द नेम सजेस्ट, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. इसका मतलब इसमें क्या होता है? प्रोसीजर. प्रोसीजर किसके बारे में? किसके बारे में? यस, एस्पेक्ट्स. से फॉर एग्जांपल अगर हॉट एयर ओवन तुम लोग यूज करना चाहते हो तो ऐसे SOP होता है लैब में. ओके, SOP में सारे डिटेल्स होते हैं, क्या सब्जेक्ट है, मतलब किसके लिए है. ओके, फिर प्रिपेयर्ड बाय, चेक्ड बाय, ऑथराइज्ड बाय होता है. उसका पर्पस होता है, मतलब क्या कि द SOP ले डाउन द प्रोसीजर फॉर ऑपरेशन ऑफ हॉट एयर ओवन. फिर उसका स्कोप होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि किसके पास इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. प्रोसीजर होता है स्टार्टिंग फ्रॉम स्विचिंग इट ऑफ, स्विचिंग इट ऑन टू स्विचिंग इट ऑफ. सारे स्टेप्स इसमें मेंशन किए हुए होते हैं. मतलब पिन को सॉकेट, मतलब मेन सॉकेट में प्लग करना है, मेंस को स्विच ऑन करना है. ओके, फिर टेम्परेचर नॉब होता है हॉट एयर ओवन पे, उसको एडजस्ट करना है. फिर टाइम का नॉब होता है, उसको एडजस्ट करना है. फिर उसमें कंपाउंड रखना है जो भी ड्राई करना है, या फिर मटेरियल जो भी स्टरलाइज करना है. एंड वंस द टाइम गेट्स ओवर, once the temperature achieved and the time gets over, once the procedure finishes, you are supposed to switch it off. तो ये सारा डिटेल हैंडलिंग प्रोसीजर होता है. ओके, सो दिस इज with reference to SOP. okay, standard operating procedure. मतलब इसमें क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के या फिर कोई भी चीज के ऑपरेशन का. मतलब
हॉट एयर ओवन कैसे यूज करना है, इनक्यूबेटर कैसे यूज करना है, या फिर कोई भी ले लो, वैक्यूम पंप कैसे यूज करना है, कुछ भी। वेइंग बैलेंस का भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कैसे यूज करना है उसके स्टेप्स का होता है। सो देयर आर SOPs फॉर ईच एंड एवरीथिंग व्हिच इज देयर इन योर लैब। ओके, हाउ यू आर सपोज टू हैंडल इट, समझा? हेलो, yes, Yes, ma'am. Yes, so ma'am. I will, yes, I will share the links with you, whatever the things which we have covered today, and इसका recording का भी link मैं share करूंगी तुम लोगों को। ओके, और ये मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट जो हम लोगों ने देखा वो तो उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ओके,